وہ ہمارے ملک کے لیے لڑ رہا ہے, وہ ہمارے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے سر. قسم خدا کی وہ ہمارے, ان لوگوں کی مستقبل تو پوری ہے. ان لوگوں نے تو اتنی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں نا کہ اس کی نسل و تسلوں کے لیے وہ کافی ہے. لیکن ہمارا کیا ہے؟ ہم نے تو وہ جو کچھ ہمارے پاس تھا بھی نا, وہ خان کے لیے ہم نے کھو دیا. یہ ہوتا ہے حکومت کی پالیسی. آپ نے ہمیں اس لیے ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا کہ آپ ہمیں خان رہا کریں. تو یہ خان کی رہائی کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ جرگہ بلائے, پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں, کراچی سے لوگ آ رہے ہیں, سندھ سے لوگ آ رہے ہیں. سر پہ جو سر یہ کہتے ہیں نا کہ کفن باندھتے ہیں, وہ اس طرح باندھتے ہیں. ان جیسوں کی نہیں کہ وہ پولیس اور رینجر کو دیکھ کر ڈر کے مارے نا اسلام آباد چھوڑ کے, ڈی چوک چھوڑ کے پشاور آ جائے. وہ لوگ نہیں ہے. یہ ایک واحد آدمی ہے نہ ڈر کہ یہ خان کو رہا کر سکتا ہے. کارکنان چہرہ لٹکائے یہاں پہ جلسہ گاہ میں اس وقت موجود ہے, تو آئیے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آج مایوس کیوں ہیں, چہرے کیوں لٹکائے ہیں؟ جلسے کے اعلانات, دعوے بڑے بڑے کیا کیے گئے تھے, اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ نے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عباد الرحمان ہے, میں پشاور سے بلانگ کرتا ہوں اور تنظیم جان ساران یوتھ کا صدر ہوں میں. سر میں آپ کو ایک سمپل سی بات, آپ نے شیخ افضل مروت کی اتنی بڑی تصویر اٹھائی ہوئی ہے. سر وہ جان ہے ہماری, وہ جان اس لیے ہماری, جس دن یہ سارے بیلوں میں چھپے ہوئے تھے نا, تو یہ ایک واحد آدمی تھا کہ یہ نکلا ہوا تھا. اگر یہ نہیں تھا نا تو آج KPK میں کسی کا ایک MPA بھی ہمارا نہیں تھا, نہ MNA ہمارا تھا. یہ واحد بندہ تھا کہ یہ نکلا تھا. اس نے سر پہ جو سر یہ کہتے ہیں نا کہ کفن باندھتے ہیں, وہ اس طرح باندھتے ہیں. ان جیسوں کی نہیں کہ وہ پولیس اور رینجر کو دیکھ کر ڈر کے مارے نا اسلام آباد چھوڑ کے, ڈی چوک چھوڑ کے پشاور آ جائے. وہ لوگ نہیں ہے. یہ ایک واحد آدمی ہے نہ ڈر کہ یہ خان کو رہا کر سکتا ہے. ہم نے نہیں دعویٰ کیا ہے. یہ جتنے لوگ آج نکلے تھے نا سر, ہاں میں مانتا ہوں لوگ نکلے تھے, بہت کامیاب جرگہ تھا, لیکن آگے کا لائے عمل کچھ نہیں تھا, بالکل زیرو تھے. نہ ان لوگوں نے کچھ لائے عمل دیا, کچھ بھی نہیں, بس اپنے کڑی. اور ہاں شیخ وقاص نے ایک بات بھی کی تھی ہمارے وہ بات بتاؤ, وہ بات بڑی گھوم رہی ہے. شیخ وقاص اکرم نے کیا آج؟ سر ہم پٹھان ہیں, ہمارے باپ میں بھی جو غلطی ہوتی ہے نا, ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ میں غلطی ہے. تو یہ وزیر اعلیٰ اور یہ مطلب MPA منسٹر, یہ کون ہوتے ہیں؟ اگر ان لوگوں میں یہ شعور تو ہم نے خان نے دیا ہے, خان نے ہمیں یہ شعور دیا ہے کہ آپ صحیح کو صحیح کہہ دو اور غلط کو غلط کہہ دو. تو ہم آج کیوں نہیں کہیں گے؟ ہم کہیں گے, ٹنگے کے چوک پہ کہیں گے. شیخ وقاص اکرم نے کیا کہا؟ یہ کہہ دیا کہ اگر کسی نے مطلب آپ کسی نے انگلی بچا دی یا مطلب آپ کسی پہ تنقید کر رہے, تو یہ اس نے غلط الفاظ کہہ دی. اس وجہ سے صرف ہم مروت کے لیے نکلے. میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتا دوں, کیونکہ یہ اگر 1 لاکھ لوگ ہمارے ساتھ نکلے سر, 1 لاکھ لوگ, صرف مروت قیادت کرے گی اس کی. اگر 24 گھنٹوں میں ہم نے خان کو رہا نہیں کیا تو پھر آپ مجھے بتا دیں. خان آپ لوگوں کے سامنے ہوگا, خان آپ لوگوں کے بیچ میں ہوگا. یہ لوگ کر ہی نہیں رہے خان کے لیے, آزادی کے لیے, خان کے لیے یہ کچھ نہیں کرے, کیونکہ ان لوگوں کی یہ مزے چاہیں گی, ان لوگوں کی یہ عیاشیاں چاہیں گی, ان لوگوں کی یہ جو بسکٹیں اور یہ طرح طرح کی ٹوریں کر رہی ہیں نا, آج اس کو منسٹری دو, اس سے لو کل اس کو منسٹری دو. یہ ہوتا ہے حکومت کی پالیسی. آپ نے ہمیں اس لیے ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا کہ آپ ہمیں خان رہا کریں. تو یہ خان کی رہائی کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ جرگہ بلائے, پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں, کراچی سے لوگ آ رہے ہیں, سندھ سے لوگ آ رہے ہیں, اور آپ ادھر نہ کوئی لائے عمل نہیں, بس آپ آئے, آپ نے تصویریں نکالی اور چلے گئے. اور یہ جلسے پہ جتنا خرچہ ہو گیا نا سر, یہ ہمارا پیسہ ہے, ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہے. کس نے ان لوگوں کی اجازت دی ہے کہ اب ہمارا پیسہ اس طرح لگا لو؟ وہ جلسوں کا خرچہ اپنی جیبوں سے کر رہے ہیں, وہ سرکاری خزانے سے نہیں کر رہے. سر کون جیب سے کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ ہمیں بھی بتائے نا, کون کر رہا ہے جیب سے؟ علی امین کر رہا ہے. سننے میں ہے علی امین گنا پور اپنی زمینیں بیچ کے یہ سارا رینج. سر تو اس کے وہ زمینیں بیچ رہے, بجائے اس کی کہ وہ کم ہو جائے, وہ تو بڑھتی جا رہی ہیں. یہ کس طرح چاہتے؟ یہ فضل الرحمان والی کہانی ہے, غیبی مدد ہے. یہ مجھے بتائے کہ ہماری خان کی گورنمنٹ تو ان لوگوں نے, یہ فضل الرحمان تھا نا, اس نے کہا تھا کہ میں نے گرائی ہے خان کو. آج یہ اس کے پیچھے کیوں ایسے ہے؟ کیوں ایسے ہے؟ وہ آپ جب اب جاتے ہو کہ خان کو رہا کرو فضل الرحمان کو, تو گرایا کس نے؟ یہاں تک یہ جو سل میں بند کیا ہوا ہے, تو یہ کس نے کیا؟ یہ PDM کے سردار تھا نا. آپ آج جاتے ہو ایسے ہو, ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ یہ غدار ہے, یہ تمہارا دین بیچ دے گا. ہم نے کہا, ہم نکلے تھے, ہم نوجوان نکلے تھے, نہیں بیچنے دیں گے. آج آپ ایسے ہو کیوں؟ ہم سوال کریں گے شیخ وقاص صاحب, ہم سوال کریں گے, جواب مانگیں گے, کیونکہ آپ کو پہلی دفعہ ٹکر کے ورکر ملے ہیں. ہم کریں گے سوال, ہم پوچھیں گے سوال. ہمارا حق ہے
क्यों नहीं? आप आज जाते हो कि आप हमारे लिए खान रिहा करो, उसके पास 8 सीटें हैं, आपके पास 80 सीटें हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? आप करो ना। 80 सीटों वाली 8 के पीछे जाते हैं कि आप हमारे लिए खान रिहा करो। आपके पास ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। हमने वोट दिया है आपको, हमने शिलिंग खाई है, हमने पत्थरे खाई है, हमने गोलियां खाई है इस दिन के लिए। हमारे सारे जितने बेरोजगार थे उस पे ताले लगे हुए थे इन लोगों की वजह से। हमने 8 फरवरी में हमने निकले थे, हमारे दोस्त यूके से, दुबई से, सऊदी अरब से आए इसलिए कि हम इन लोगों को वोट देंगे और ये हमारे लिए खान रिहा करेंगे। ये कहानी है खान रिहाई की। आप लोग सिर्फ पैसे कमा रहे हो, आप लोग सिर्फ अय्याशियां कर रहे हो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने टिकटाके बना रहे हो। खान की रिहाई के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। हर पार्टी, हर सियासी पार्टी अपने वर्कर का, अपने कारकुनान का खून बेचती है। क्या पीटीआई के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? पीटीआई में कुछ ऐसा किया जा रहा है? सर कसम खुदा की पीटीआई के वर्करों ने जितनी कुर्बानियां दी है ना, बहुत ज्यादा। वल्लाह बिल्लाह ऐसे किसी ने नहीं दी है। आए हमारे साथ FIR हमारे देखें, आए हमारे साथ घर हमारे देखें, हमारे चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो गया है, हमारे बहनों को गालियां पड़ी है, हमारी माओं को गालियां पड़ी है, हम पर इतनी बदतरीन किस्म की तशद्दुद हुए हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, सबको पता है। लेकिन ये हमारे खून के साथ, हमारी चादर और चारदीवारी के तकद्दुस के पामाल का इससे सबसे बड़ा इन लोगों हमारी लीडरशिप का हाथ है। क्योंकि हम इसलिए कर रहे थे कि ये लोग इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इन पुलिस वालों को सबक सिखाएंगे। आज इन पुलिस वालों को ये अवार्ड दे रहे हैं, उसको प्रमोशन दे रहे हैं। बाजावर के जो डीएसपी था ना सर, उसने हम पे शिलिंग की थी, उसने सीधा सीधा गोलियां मारी थी। मरवत साहब हमारे साथ था, आज उसको ये पेशावर SP प्रमोशन लगाए हुए सर। और ये हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है। और एक मजे की बात मैं आपको बता दूं सर, हमने ये गवर्नमेंट इसलिए मांगी थी तो अगर कल इमरान खान की हुकूमत आ जाती है मुकम्मल पंजाब में भी, तो ये जो इंसाफ आप मांग रहे हो ना मिलेगा तो क्या करेंगे? सर मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, हम खान के एक ही एजेंडे पे खड़े थे कि हम इंसाफ देंगे, हम इंसाफ देंगे, हम इंसाफ दिलाएंगे और हमारी जो गवर्नमेंट है ना उसमें मुरूसी सियासत नहीं होगी। आज देखिए ना, बेटा एक सीट पे तो बाप दूसरे सीट पे, चाचाजाद तीसरे सीट पे, ये हाल है हमारी, ये हाल है हमारी। आप कयादत देख ही लें सर, जितनी भी कयादत है ना वो अपने लोगों को उठा रहा है, अपने बंदों को उठा रहा है और हर बंदे के पास 3-3, 4-4 ओहदे हैं। आज नेशनल वाले जो नेशनल पार्टी के लोग होते हैं ना, या मौलाना फजल रहमान की पार्टी में, वो जाके मिनिस्टर के ऑफिस में होता है, उसमें उसका काम 2 मिनटों में होता है। हमने कुर्बानी दी है, हमने जानी लगाई है, हमने खून दी है, लेकिन हमारा जब हम मिनिस्टर के सामने हो जाते हैं ना, वो कह रहे उसको साइड पे करो, मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है। हम इन लोगों को अगर कोई कहता है कि हमें इस पे शक है, शक नहीं करे ना सर, ये लोग दिखाए ना खान की रिहाई की आंखों में आंसू आ गए, नम हो गई। हाँ सर, हम मैं झूठ तो नहीं कह रहा, कसम खुदा की सर हमारा दिल रो रहा है, हमारे आंसू अब खत्म हो गए। हम किसके पीछे रो रहे हैं? हमें सिर्फ एक ही बंदा चाहिए सर, वो इमरान खान है। हमें ये लोग अगर आज लाखों की तादाद में लोग हैं ना, बात आती जाएगी थी, आपको एक बंदा चाहिए उस लिए रोते हैं, उसके हाँ लिए रोते हैं। हाँ सर, एक बंदा चाहिए, सिर्फ एक ही बंदा चाहिए। उनको चाहिए नहीं, वो रोते नहीं। नहीं सर, इन लोगों को नहीं चाहिए, कसम खुदा की इन लोगों के लिए नहीं चाहिए। अगर चाहिए होता ना तो ये डर के मारे ना इस्लामाबाद छोड़ के इधर नहीं आए थे, लेकिन ये कर ही नहीं रहे क्योंकि हमारा प्यार सिर्फ एक ही बंदा है, वो इमरान खान। वो हमारे मुल्क के लिए लड़ रहा है, वो हमारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है सर। कसम खुदा की वो हमारे, इन लोगों की मुस्तकबिल तो पूरी है। इन लोगों ने तो इतनी जायदादें बनाई हुई है ना कि इसकी नस्लों तस्लों के लिए वो काफी है। लेकिन हमारा क्या है? हमने तो वो जो कुछ हमारे पास था भी ना, वो खान के लिए हमने खो दिया। क्यों? लेकिन हम इस मुल्क के साथ मोहब्बत कर रहे हैं, हम इसकी अपनी मिट्टी के साथ मोहब्बत कर रहे हैं। वो एक बंदा है बस, ये इसका हाल है, हमें इसको रिहा करना है। ये देखिए ना सर, ये क्यों चले गए? हम खड़े हैं ना इधर, ये क्यों चले गए? किसके बिना पे ये क्यों इन लोगों ने ये मैदान छोड़ के चले गए? इसको चाहिए था ना कि ये आगे का लाइमल तय कर लेते थे कि हम ये सवाबी है, ये इस्लामाबाद है, हम जाएंगे। लाखों की तादाद में तो लोग निकले हुए हैं ना, तो जाओ ना। आपने कहा था कि सर पे कफन बांध के घर को फोन कर दूंगा, अगर मैं वापस नहीं आया तो समझो कि मैं चला गया। ये हाल है, आप तो मैदान छोड़ के गए हैं, आपकी एक दफा नहीं है। अब हम आपकी नहीं सुनेंगे, हम खुद निकलेंगे इंशाल्लाह। हम अपने आप में इतनी हिम्मत देख रहे हैं कि हम खान को रिहा करेंगे। मैं तमाम PTI की वर्कर को यह कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के बातों में अब नहीं आना है।
जिसकी आपने तस्वीर उठाई है, कल को ये भी ऐसे बेवफा निकलता, क्या करेंगे? सर हमने इसको हर फ्लोर पे देखा है, वाहिद ये आदमी है। हर महाज पे हमने देखा है, ये वाहिद आदमी है, ये लड़ रहा है। सर आपकी मजे की बात बताओ, जिस बंदे के मुखालिफिन ज्यादा हो जाता है ना, तो समझो ये बंदा सही है। ऐसा है कि मैं सिर्फ एक बात करूंगा, ये जितनी बातें हमने की है ना, ये तकरीरें करना, ये सब कुछ, ये इमरान खान का काम है। ये जलसे करना इमरान खान का काम है। हम उसके लिए उसको निकालने के लिए सिर्फ एहतजाज कर सकते हैं। अभी हमने पिछले कुछ दिन हफ्ते पहले हमने जरगा किया था, शेर अफजल मरवत साहब उधर आए थे। एक लायमल हमने बनाया है कि हम सब इकट्ठे होकर शेर अफजल मरवत साहब की क़यादत में खान साहब की रिहाई के लिए इंशाल्लाह तहरीक चलाएंगे। और 23 तारीख़ को अब हमारा ग्रैंड जरगा है आल पाकिस्तान की सतह पर। उसमें मुख्तलिफ सिर्फ वर्कर्स आएंगे, लायमल बनाएंगे और उसमें शेर अफजल मरवत साहब को हम क़यादत सौंपेंगे। अब हम बिल्कुल नाउमीद हो गए हैं अपनी क़यादत से। 23 तारीख़ ये फ़ाइनल है, उसको हम इंशाल्लाह जरगा करेंगे। और ये जो है जितना कुछ भी है अब हमने वर्कर्स ने खुद करना है। सदाकत खान ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, ये जलसे करना सिर्फ खान साहब का हक है और काम है। जी वो उसका काम। हमारा काम है एहतजाज करें और हिम्मत करें, अच्छे तरीके से केस लड़ें, लॉन्ग मार्च करें या धरना दें। तो उन चमचों से है ना, ये चमचे जो इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना, उनको ये बस तसल्ली दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, वर्कर्स भी आपके पास है, सब कुछ सही है। तो उन चमचों की वजह से ये जो क़यादत है ये हमें आंखें दिखा रहे हैं। अब इस भाई ने ये जो इनके आंखों में आज आंसू है ना, यहाँ पर अकेले खड़ा है क्योंकि हमें ये बताया गया था कि हम सवाबी के मुकाम पर ठहरेंगे, 2-3 दिन तक यहाँ पर हम ठहरेंगे और हम आगे का लायमल जो है, हाँ बिल्कुल यहाँ पर कैंपें लगाएंगे और यहाँ पर ठहरेंगे और मजबूत लायमल बनाएंगे, प्रेशर बिल्डअप करेंगे आगे जाने के लिए। लेकिन कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पर है लेकिन सारी क़यादत जो है वो यहाँ से भाग गई है। मैं आपसे पूछता हूँ, लोगों की स्टेमिना ये लोग ख़राब कर रहे हैं हमारी। सदाकत साहब, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ये लोग मुल्क के कोने कोने से आए हैं, इतनी रेजिस्टेंस से ये लोग आए हैं, पैसे लगाए हैं, कारोबार घर बार सब कुछ छोड़ के यहाँ आपके पास आए हैं। कब तक आप इनको उल्लू बनाओगे कि आ जाओ जलसा करेंगे? जलसे करना तो लोग जो है वो जब खुशी के मुकाम होते हैं तो तब जलसे करते हैं। एहतजाज की हमें ये जरूरत ना है। हो एक दिन ऐसा आए कि ये जलसे के लिए कारकुनान को बुलाए, वो आए ही ना। तो ऐसा शेर ही- आया ऐसा ही- फिर एक दिन शेर ये आई। जो आज आपने देखा लोग आए थे, फिर भी आए थे थोड़ी बहुत, अब भी इन पे जो है इतिमाद है। लेकिन आप लोग नहीं, ये लोग समझो तो बड़े आए कि थे, जो इसमें आए कोई थे, शक नहीं कोई शक है, नहीं मगर उसकी वजह पता क्या थी? कफन बांध के आना, मैं बांध के आऊंगा। तो बात मैंने आपको बता दी तो ना। बाद में कौन निकलेगा? कफन किस लिए कि हम इधर बैठेंगे, कैंप लगेगा, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। बाद में 3 दिन पहले इन लोगों ने ये बात हुई की थी। ये सिर्फ हमें वो शेर आने वाली कहानी सुना रहे थे कि हम 3 दिन बैठेंगे, हम कफन बांध देंगे, हम आगे जाएंगे और हम ये करेंगे। ये कुछ नहीं करेंगे। इन लोगों ने पैसे बाकायदा तकसीम किए हुए 70 लाख रुपए इनने हर डिस्ट्रिक्ट को दी है कि आप लोगों को निकालो। हर बंदे को 5-5 लाख रुपए जो उधर थे वो यूथ के थे या मतलब इस तरह तंजीमों के थे, उन लोगों को इन लोगों ने दी है कि लोगों को निकालो। और आपने 7 बजे के बाद सब बंदों को वापस करना है। अच्छा, हाँ सर, ये मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ। ये पहले इन लोगों ने कमिटमेंट की कैसे थी। कह सकते हैं सर मैं उस मीटिंग में था, इन लोगों ने ये एसएफ वालों ने मीटिंग बुलाया था और यूथ वालों ने उसको कह दिया था। फी बंदा पैसे हाँ, दे के लाए इन लोगों ने ना गाड़ियों को या लीडरों को दिए जी। गए। हाँ, गाड़ियों जो मतलब सीनियर था मोहल्ले का, जो यूसीवीसी के लिहाज से उन लोगों ने दी, लेकिन उसको ये भी साथ साथ में बताया गया था कि 7 बजे के बाद आप लोगों ने उधर नहीं ठहरना, आपने जाना है। ठीक है, तो इसी वजह से हम खड़े हैं इधर कि ये तो कह रहे थे कि हम 3 दिन स्टे करेंगे। कराची से लोग आए हैं सर, इस्लामाबाद से, सिंध से, वो इसलिए आए हैं कि हम इधर वो कंबल बिस्तर सब कुछ साथ लेके आए हैं। उन लोगों का क्या होगा? हम तो बात करेंगे, उंगली उठाएंगे, जहाँ पर गलत होगा तो उधर हम बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो अगर वो हमें इनसे ये हक हमसे छीन रहा है तो ये गलत होगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 26 अक्टूबर को हमने पेशावर में वर्कर जरगा मुनक़िद किया था। ठीक है, 26 अक्टूबर को बहुत बड़ा जरगा हमने किया अभी पिछले दिनों। ठीक है, उसमें शेर अफजल मरवत साहब आए थे और हमने उसमें ये तय किया है कि ये जो क़यादत है, पार्टी की क़यादत, इसको आप नहीं रख सकते। यानी आपके पास अगर कोई ओहदा है तो वो आप अलग करें, क्योंकि आप MNA हैं या आप MPA हैं या आप मिनिस्टर हैं या आप CM हैं, तो उसको आप छोड़ें, आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। ठीक है, और ये जो है इसको आप छोड़ें। तो अब 23 तारीख को हमारी 23 नवंबर को क्या है, अब ग्रैंड जरगा है आल पाकिस्तान। तो
تو اس کے لیے جتنی بھی لوگ میری آواز سن رہے ہیں میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ورکر جرگا ہے اور ہم نے شیر افضل مروت صاحب کو انشاءاللہ یہ قیادت سپرد کرنی ہے تاکہ وہ ہمارے لیے خان صاحب کو